The LGBTQ group is referred to as the lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer community, which includes those with gender dysphoria and different sexual orientations. This is a publication that I'm quoting. The census of 2011 was the first time ever that we have had the data of transgender community in India. And they were collected in the category of others under gender with details related to their employment, literacy, and caste. The census revealed the total population of transgender to be around 4.88 lakhs, which itself was not very accurate because of variations in the data collection. Good evening, Namaskar. I'm Dr. Meena Mishra, Chairperson, Brain Behavior Research Foundation of India. Our mission is to promote positive mental health and well-being for all. Today is World Mental Health Day, and the theme for this year is Mental Health in an Unequal World. Throughout the week, we have touched upon those areas of the society who are least considered, especially in terms of mental health provisions. In the same vein, we would be discussing in this session on mental health in transgender community, a reality check and the way forward. I welcome our expert, Tamanna Saxena ji, who is Assistant Professor in Department of Psychological and Allied Sciences, Amity University, Noida. Her expertise is in child and gender psychology. Welcome, Ms. Tamanna. Thank you. Thank you so much, Dr. Mishra. It's my pleasure to welcome Deepak Kumar, National Program Officer, Sexuality, Gender and Rights, working with India HIV/AIDS Alliance. She is also known as Deepika in her community, workplace, as well as in many states of India. Recently, Deepika has got membership of International AIDS Society when Deepika was representing her work at AIDS 2018 at Amsterdam. She has done her graduation in arts from Delhi University in 2015. And Deepika has also contributed to a book, Sahitya aur Samaj Mein Ubharta Kinnar Vimarsh, published by Nalanda Publications. Deepika's pic itself is on the cover page of this book, which is based on transgender community lifestyle. And she's also involved with a project called Unsaid, Unheard, where she is itself a character as community activist. It's a documentary movie project, which she's running this program with the support of some youth friends and college students. Another feather in her cap is that she's associated with Delhi Human Library, where she is a book as transgender. Ms. Deepika is here to narrate her experiences with us. Welcome, Ms. Deepika. Thank you. And of course, we have with us in this session Ms. Shalini Pandey, who is a research scholar in the Department of Social Work, University of Delhi. She has submitted her PhD thesis with the title Sexual Minorities and Social Work, a study of transgender people in NCT of Delhi. She has taught BSW students at Aditi Mahavidyalaya. Bhawana, affiliated to University of Delhi, is a trained social work professional who has completed her MSW from Department of Social Work, University of Delhi. And she has a keen interest to work with sexual minorities, primarily the transgender people. She has several publications to her credit, and she continues to express her thoughts whenever possible. And this is the reason we have today with Ms. Shalini with us, because she has something to express regarding our topic as well. So now I would request Ms. Shalini to take the session forward as we proceed towards an insightful and sensitizing discussion. So welcome, Ms. Shalini, and please take over. Thank you so much, Dr. Meena. First of all, I would like to congratulate BBRFI on organizing Mental Health Advocacy Week, where individuals came forward from all walks of life and shared their lived experience in this unequal world. I would now like to open up the interview session with a friend of mine from the transgender community. Deepika ji, we are all good to go. So my first question to you is with regard to the experiences, especially related to mental health of the transgender community. क्योंकि हमने ये देखा कि 2019 में there was complete lockdown announced or everything was shut down and it was named as first wave and second wave. तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उस दौरान ट्रांसजेंडर पर्सन्स का लिव्ड एक्सपीरियंसेस कैसा रहा, उन्होंने आपसे क्या क्या शेयर किया.
वो व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो जो सेपरेटली रहते हैं, और उनका नेबरहुड कोविड-19 के समय में उनका हैंड होल्डिंग कर पाया या नहीं, क्योंकि मोबिलिटी एंड ट्रैवल वी ऑल नो हैड कम टू अ स्टैंड स्टिल। दीपिका जी। सो देखिए, यस, आपका कहना एकदम ठीक है। 2019 में ऐसा हुआ कि फर्स्ट वेव ऑफ कोविड आया और उसके बाद काफ़ी चेंजेस आए, काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, क्योंकि इसके पीछे रीज़न रहे हैं, क्योंकि एक तो ये माइनॉरिटीज़ में आते हैं और इसकी वजह से इनके साथ सपोर्ट नहीं होते हैं। अब उसको अगर हम तीनों कैटेगरीज में अगर डिवाइड करके देखें तो एक एक कैटेगरी है जहां पर ट्रांसजेंडर्स लोग अपने ट्रांस फैमिली में ही रहते हैं, मतलब गुरु, चेला, फ्रेंड्स, इन लोगों के साथ में रहते हैं। तो वहां पे एक चीज बहुत अच्छी थी कि एटलीस्ट उनको मॉरल सपोर्ट था। वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर पा रहे थे, बात कर पा रहे थे, वो लोग अच्छे से रह पा रहे थे। उनको कहीं ना कहीं से राशन का या खाने पीने की जो एसेंशियल सर्विसेज थी, उनकी नीड्स जो है टाइम पे मिल पा रही थी, है ना। तो और क्योंकि वो अपने मन की सारी बातें एक दूसरे से शेयर कर सकते थे, बातें कर सकते थे, तो दे वर लिटिल बिट हैप्पी, मतलब एज कंपेरेटिव टू अदर ट्रांस कैटेगरीज। ट्रांसजेंडर्स दोज आर लिविंग इन फैमिली, उन लोगों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि वो लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, उनके मन में क्या चल रहा है वो नहीं किसी को शेयर कर पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ ट्रांस वुमेन हु इज अट्रैक्टेड टू अ मैन, वो किसी के बारे में मतलब अपने पार्टनर के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में अपने फैमिली से तो शेयर नहीं कर पाते हैं यूजुअली, फ्रेंड्स में तो कर लेते हैं, तो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके दिमाग का जो स्टेटस है, उनका जो मेंटल हेल्थ है, उस पर बहुत असर हो रहा था, क्योंकि कहीं जाने को नहीं मिल रहा है, किसी से बात करने को नहीं मिल रहा है। एंड शी वांटेड टू मीट हर बॉयफ्रेंड। एंड ट्रांस मैंस के बारे में भी अगर बात करेंगे तो ट्रांस मैन का भी वही इशू था, दे वांटेड टू मीट देयर पार्टनर, देयर गर्लफ्रेंड, देयर वाइफ, वो सब चीज़ें हैं, तो वो भी नहीं हो पा रही थी। तो मेंटली बहुत स्ट्रेस हो गया था, बहुत अनहेल्दी फील कर रहे थे अंदर से मेंटली। और इसके वजह से ये इश्यूज आ रहे थे कि कुछ लोगों का जिससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, कुछ लोगों का खाना पीना टाइम से नहीं हो पा रहा था, कुछ लोगों की नींद ठीक से नहीं हो पा रही थी। आई नो मैनी पीपल, ऑलमोस्ट अराउंड 40 to 50 ट्रांसजेंडर पीपल जिनको सर में दर्द रहने लगा था, है ना, जिनको रात को नींद ठीक से नहीं आ रही थी, क्योंकि कुछ करने को नहीं है, पूरा दिन एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, कहीं बाहर जा नहीं पा रहे। एंड ट्रांसजेंडर दोज आर डूइंग सेक्स वर्क, ये एक अलग कैटेगरी है जो सेक्स वर्क करके पैसा कमाते हैं। उनके लिए और भी ज्यादा डिफिकल्टीज थी। उनके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज क्या थी कि एक तो वो सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया, पैसा नहीं आ रहा है, लोग डर रहे हैं कि सामने वाले को कहीं कोविड ना हो, मैं उससे मिलूं और मुझे कोविड ना हो जाए, इसकी वजह से लोग उनके पास आ नहीं रहे, उनके साथ मिल नहीं रहे, क्योंकि लोगों को लाइफ खोने का डर है। उन्हें लग रहा है कोविड से मेरी मौत भी हो सकती है, और यहाँ तक नौबत आई कि इससे बेटर है कि मैं किसी से जाके ना मिलूं। तो लोग, वो ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स जो हैं, उनसे कोई आके मिल ही नहीं रहा था, और जब उनसे कोई आके मिल नहीं रहा था तो उसके वजह से ये हो रहा था कि उनके पास पैसा नहीं आ रहा था, और जब कोई मिल नहीं रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, और पैसा नहीं आ रहा है, तो वो अपने लिए जो भी डेली रूटीन में जो भी उनकी नीड्स हैं, खाना पीना, दूध, चावल, चीनी वगैरह वगैरह, ये छोटी छोटी चीजों के लिए भी वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। और क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको सुबह की चाय टाइम से नहीं मिल रही है, क्योंकि उनको डिपेंड होना पड़ रहा है किसी और इंसान से, उनको बोलना पड़ रहा है कि हमें सपोर्ट कर दो, तो उनके लिए लाइफ जीना उस वक्त बहुत बहुत ज्यादा ही टफ हो गया था। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे थे मेरी नजर में जिन्होंने सुसाइड तक किया इस सिचुएशन में आने के बाद। उनको लगा कि उनको अपनी जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे आई रिसीव्ड अ कॉल, ट्रांसजेंडर पर्सन ऑन Facebook Messenger, and she was from other state, not from Delhi, and she called me one day कि कहीं से कुछ राशन अरेंज हो सकता
है. I said ठीक है, I will try to arrange something for you. So unfortunately वो नहीं हो पाया. And one day she called me कि today I'm going to die because मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है और मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे लगता है कि अब हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी क्योंकि कोविड ने इतना असर डाल दिया है कि हम शायद हम सरवाइव ना कर पाए. शायद 4 साल अगर ये सिचुएशन रही तो मैं पैसा कहाँ से कमाऊंगी बिकॉज आई एम इलिटरेट पर्सन. मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की है, मुझे डांस भी नहीं आता है कि मैं नाच गा के पैसा कमा लूँ, हिजरा कल्चर में चली जाऊँ. मैं सिर्फ यही करती थी और इसी पे आज तक डिपेंडेंट थी. एंड नाउ आई एम 40 ईयर ओल्ड और मैंने 20 साल के एज से ये शुरू किया था और पिछले 20 साल से यही मेरी जिंदगी है. तो अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ. सो शी टेक्स्ट मी दिस मैसेज. इट्स बहुत ही पेनफुल है ये सारा सुनना और जानना, और आप सबके लिए बहुत ही मुश्किल का दौर रहा होगा जैसे बाकी लोगों के लिए भी था. तो मेरा अगला सवाल डॉक्टर तमन्ना से है, and I would like to know from you as a psychologist that what do you think can be the role of biological parents, the siblings, the neighborhood, and other people towards the transgender child, so that to some extent the mental health of transgender persons can be taken care of. Dr. Tamanna. Thank you, Shalinji, for the question. And it was definitely overwhelming to hear about all the pointers that have been shared by Deepika ji. Now, as being asked by you, definitely the biological parents, siblings, and most importantly, all of us as a society, and being the people out there in the neighborhoods have very, very important and essential role to play. Why? Because as was being mentioned by Deepika ji also, we are talking about minority group. We are talking about a group somehow which is being separated and which is different from the other known ones. So in any case, in order to work with them, in order to make it easier for them, it is essential that we create a safe kind of an environment, a secure kind of an environment. And at the first place, the most important and the most essential safe place, like what all of us are aware about, is the home. And when we are talking about the biological parents, and I would like to again take this opportunity to put it across to all the biological parents of the people out there in the community, that it is essential that you really, really need to be optimistic for your child. Very, very optimistic for your child, being aware about the differences, understanding the differences, lending a kind of an ear, lending a kind of a compassionate heart, so that they feel wanted, they have an opportunity of a safe kind of an environment, a compassionate kind of an environment in which they can very specifically be nourished and be nurtured at the first place. Because while I'm talking about it, and if I talk from the point of view of a child psychologist, I would essentially like to put it across that for us, kids are all similar. What is different is the kind of experiences, the kind of things that they go through, and the kind of things that they take on. The same goes in even when we talk about the building up of gender identity. It's all in relation to the very basic understanding of the basic gender schema, that how entirely they try and differentiate between various factors. And in that, parents have a very, very important role to play. And one of the most important things that they can entirely do for their kids is to provide them with a safe environment, provide them with a compassionate heart, and also I would like to mention one very, very important thing, that they should be making their decisions, their choices, and whatever they do for their kid or their child based on their own beliefs, based on their own aspects for their child, rather than of their extended family
or for the friends person. Like even if I go from very specifically from the basic psychological theoretical point of view, the first interaction is with the parents person, with the house person. They need to make their decisions based on love and not on fear. A lot of times, what most of the psychological studies have also quoted on, at times it's the fear which paves way to parents not being able to provide in the kind of love that they inherently want for their kid per se. And along with that, once when the parent is very particular, the parent is fine with this aspect, it automatically gets transmitted to the siblings, and eventually from the siblings to out into the world per se. And essentially it is important, and I have been mentioning about a safe environment, a conducive environment. That is a kind of an environment in which the child feels that there is no kind of a fear or a hate out there in the world in terms Yeah, of just being this difference. Yeah, very rightly said, तमन्ना जी. और आपने बिल्कुल सही कहा. Everything begins at home. अगर घर में हम शुरुआत करें तो चीजें अपने आप परकोलेट होके बाकी लोगों तक पहुंच जाएंगी. अब मैं दूसरे सवाल की ओर जाना चाहूंगी, और मेरा सवाल दीपिका जी से है कि इस पैंडेमिक के दौरान सबसे ज्यादा कौन सा फैक्टर या कौन से फैक्टर्स वर्क प्लेस पे अफेक्ट हुई? क्योंकि अगर हम सेक्स वर्क में जाने वाले ट्रांसजेंडर पर्सन्स की बात करें तो उनकी डेली इनकम बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई फर्स्ट वेव में एंड सेकेंड वेव में, और टोली बधाई का काम भी अफेक्ट हुआ होगा, एंड रेड लाइट सिग्नल्स पे अर्न करना और बस स्टॉप्स पे या ट्रेन्स में अर्न करना बहुत मुश्किल हुआ होगा. तो इस फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के दौरान किस तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने खुद को संभाल पाए, कितने हद तक? और क्योंकि हम ये देखते हैं कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स बड़े बड़े शहरों में जाके माइग्रेट हो जाते हैं क्योंकि दे हैव बीन एक्सक्लूडेड और ऑस्ट्रेसाइज्ड फ्रॉम देयर बायोलॉजिकल फैमिली. दीपिका जी. तो जैसा आपने अभी बोला है कि ऑब्वियसली ये जो वेव आया है, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, और दोनों वेव को देखते हुए अगर हम मद्देनजर रखते हुए अगर हम सोचें तो ऑब्वियसली ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी में आप जो बोल रहे हैं सेक्स वर्कर कम्युनिटी, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोग को बोला है कि सेक्स वर्कर कम्युनिटी को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा. टोली बधाई वाले कम्युनिटी को भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, अदर जो जॉब्स करते हैं उनको भी करना पड़ा, बहुत सारी जगह हुआ है. इवन आई थिंक पर्सनली यू नो वन पर्सन जिसके बारे में मैंने आपको रिसेंटली बोला था, शी लॉस्ट हर जॉब. शी वाज वर्किंग इन अ बैंक एंड शी लॉस्ट हर जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड. एंड शायद उनको लग रहा होगा कि वन ट्रांसजेंडर इज वर्किंग एंड वो घर से क्या ही काम करती है, पता नहीं, जो भी उनको लगा. बट कुछ ना कुछ सोचते हुए उन्होंने उसको एक मौका मिल गया उनको कोविड का बहाना देख के, और उन्होंने शायद उसको जॉब. तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, बट उसको ओवरकम करने के लिए यूजुअली अगर हम देखें तो जो थोड़ा बहुत सेविंग्स था लोगों का वो खत्म हो गया. शायद बहुत सारे लोग थे या पीयर ग्रुप्स जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने सपोर्ट किया. फॉर एग्जांपल समबडी हैव सेविंग ऑफ 2 लाख रुपीस, उसने सोचा था मैं नेक्स्ट ईयर जाके शायद सर्जरी कराऊंगी, बट वो पैसा उसने एक दूसरे के सपोर्ट में लोन के तौर पे, उधार के तौर पे, सपोर्ट के तौर पे खर्च के. पीयर ग्रुप्स भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे. बट बियॉन्ड दैट अगर हम थोड़ा सा अलग सोचने की कोशिश करें, थोड़ा अलग बात करें, तो बात ये आती है कि जितने भी एनजीओज, सीबीओज, मतलब कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अदर जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, जितने की प्राइवेट सेक्टर्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई नो वन एग्जांपल आईटीसी मोरिया, है ना. सो वो लोग हैं, ललित होटल है दिल्ली में,
एंड ऐसे बहुत सारे लोगों ने सामने से आके सपोर्ट किया। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, जैसे कि आई नो few organization. In one of the organization I am working called India HIV Alliance, Humsafar Trust, साथी and many other organizations जिन लोगों ने इस तरीके का सपोर्ट किया और लोगों को एटलीस्ट एसेंशियल सर्विसेज, मतलब जो भी उनके रोज की जरूरतें हैं, आटा, दाल, चावल, चीनी, दूध वगैरह वगैरह, ऐसी चीजों का सपोर्ट किया जिससे कि लोग एटलीस्ट अपने घर, जब कंप्लीट लॉकडाउन होता था 2-3 महीने 4 महीने वाला, उस दौरान हम लोग उनके घरों तक हम वो सब चीज़ें पहुंचाते थे या उनको बोलते थे कि आप ये पर्टिकुलर जगह आइए, वहाँ हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप वहाँ से लेके जाइए। तो वो चीज़ किया है। एंड विद सपोर्ट ऑफ वन लेडी, शी वाज माय वेरी गुड फ्रेंड, even she is my good friend, so she have supported me to distribute 300 box meals every day to transgender community for 2 months. तो 2 महीने तक हम लोगों ने वो सपोर्ट किया। तो ऐसे बहुत सारे सपोर्ट हम लोगों ने यहाँ वहाँ से मोबिलाइज किए और उन सपोर्ट्स के थ्रू हम लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सपोर्ट कर पाए, जिससे कि वो लोग सरवाइव कर पा रहे थे, एटलीस्ट सरवाइव कर पा रहे थे। मतलब अपनी ज़रूरतें तो नहीं पूरी कर पा रहे थे, वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे थे जो वो चाहते थे, बट एटलीस्ट वो खाना खा पा रहे थे, वो रह पा रहे थे। बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स के घर छूट गए, वो लोग मतलब जहाँ रेंट पे रहते थे, उनके ओनर्स ने, लैंडलॉर्ड ने उनको बोला कि अब हम आपको नहीं रख सकते क्योंकि आपने पिछले 3 महीने से रेंट नहीं दिया। तो मेनी ऑफ देम वेंट टू देयर होम टाउन एंड दे हैव गॉन टू हिजरा फैमिली एंड हिजरा फैमिली हैव सपोर्टेड देम टू लिव फॉर सम टाइम इन देयर हाउसेस। तो कुछ लोगों को वहाँ उनके घरों में रहने के लिए शरण मिली। तो वो करते करते इन चीज़ों को हम लोग कर पाए और उससे थोड़ा ओवरकम किया। ओके, अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर तमन्ना के लिए है। आपने सुना दीपिका जी ने इतना कुछ शेयर किया पहले सवाल के दौरान और दूसरे सवाल के दौरान भी, और बहुत सारा सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुआ वर्क प्लेस पे, घर पे एंड विद इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो बहुत ही चैलेंजिंग रहा। तो all these circumstances must have led to must have challenged the transgender individual and mental health भी बहुत हद तक affect हुआ होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप इस पे अपनी व्यूज रखें कि इस सीवियरिटी के दौरान एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ ट्रेंड काउंसलर कैसे हम अपने हेल्प कम्युनिटी तक पहुंचा सकते हैं या पहुंचाना चाहिए अभी। डॉक्टर तमन्ना। Yeah, thank you, Shalini ji, for putting across this question. जैसे दीपिका जी ने अभी बताया, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जो ये पूरा टाइम फ्रेम रहा है एंड जो पिछले पूरे 2019 के बाद से जिस तरीके का टाइम फ्रेम रहा है, वो हम सब लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है. It has been a very, very difficult time frame for each one of us. And definitely when we talk about the transgender community, they were already facing difficulties. तो वो difficulties और maximize हो गई और बढ़ गई, जैसा कि अभी दीपिका जी ने भी बताया कि वह तकलीफें अलग अलग तरह की थी. मगर मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी कि ये बहुत सी तकलीफें ऐसी हैं जो शायद बाकी और सब लोगों ने भी इसी तरीके की तकलीफें से, बहुत से लोगों की जॉब्स गई. There were a lot of people who were like in the house with a lot of people when they were not getting along very well also. इन सब उनके साथ में बहुत ज्यादा तरीके से, जिस तरीके से हम लोगों ने काम करने की कोशिश करी, सबसे अच्छी बात मैं ये कहूंगी, जैसे दीपिका जी ने बताया, बहुत से एनजीओज आगे आए, बहुत से लोग सामने आए. वी सॉ एल्ट्रुइज्म एट इट्स फुलेस्ट. हर किसी ने कोशिश करी कि वह जिस तरीके से मदद कर सकते हैं वह मदद करें. Being counselors, being psychologists, we also tried to do our bit. One, by creating one level of awareness about छोटी छोटी चीजें क्या करी जा सकती हैं, किस तरह से हम लोग एक दूसरे को एक ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव
हैंड लेंड कर सकते हैं। जिस तरह से दीपिका जी ने कहा कि सबसे पहली बात कि कोई है जिससे हम बात कर पाते हैं। उन्होंने एक उसके कहा कि बहुत से लोगों के लिए हो गया, वे बाहर नहीं जा पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे। सो बहुत से हम लोगों ने ऐसे वो हेल्पलाइंस चलाए, बहुत से ऐसे वो करे जिनको एक्सेस करा जा सकता था। कोई भी तकलीफ है, कभी भी लग रहा है कि कोई बात करने को नहीं है, या बहुत ज्यादा हम लोगों को एंजाइटी, हम लोग वैसे समझते हैं मगर एंजाइटी बहुत तरीके से आती है। हमें घबराहट महसूस होती है, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, सर में दर्द लग रहा है, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है। सो सबसे जरूरी चीज है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हाँ, हमारे लिए हेल्प अवेलेबल है, और सच में हेल्प हर तरफ से अवेलेबल थी। जस्ट अबाउट हैविंग एन एक्सेस। अलोंग विद दैट, जो एक चीज में सबको यूजुअली हम सब पे लागू होती है और हमारी हर तरीके के पे लागू होती है, we can undertake some positive tasks, positive activities. One is about helping each other. Two, trying some bit of small breathing exercises, some bit of meditation, some bit of yoga, trying and doing it. I see it as a community. When we even talk about dance, we talk about music. All these are the kind of activities which try and help an individual to take care of their basic mental health task. And कहीं पे भी सबसे जरूरी बात एक ये भी है जो मैं बार बार कहती हूँ, यह अवेयरनेस होनी that अगर थोड़ा सा भी ज्यादा लग रहा है, हम एक हेल्प के लिए जाएं, हम एक हेल्प मांगे। जैसे कि अभी दीपिका जी ने बताया कि इफ इट इज लीडिंग ऑन टू सुसाइड्स, वी हैव सीन कि last 1.5 years numerous researches, numerous tasks have been done. There have been calls, distress calls on the helplines asking for help. So it is essential कि हम साथ साथ ये भी अवेयरनेस क्रिएट करें कि हाँ, इस तरीके की हेल्प भी अवेलेबल है जिसको वह अवेल कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली हम सब लोगों को तो वी हैव टू lend an ear to each one of us so that we can take care of this. थैंक यू डॉक्टर तमन्ना। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा दीपिका जी से है कि ऐसे पैंडेमिक में जब सब कुछ बंद था और ये नहीं, किसी को भी वर्ल्ड में ये नहीं पता था कि इससे कैसे जूझे, और सडनली ये पता लगा कि पहले चीजें 3 हफ्ते तक बंद होंगी, फिर वो बढ़ते बढ़ते 3 महीने हो गए, एंड वो अभी भी हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को पुल करने की और मूव ऑन करने की। तो उस दौरान फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान कुछ इमोशनल क्राइसिस हुए होंगे, कोई अपना प्यारा, अपना चाहने वाला भी हमसे दूर हुआ होगा, कुछ लोग विड्रॉन हो गए होंगे, कुछ बिल्कुल ही अलग कट गए होंगे कि हमें, जैसा कि अभी डॉक्टर तमन्ना कह रही थी। तो आपसे मेरी गुजारिश है दीपिका जी कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपके अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में लोगों ने आपसे शेयर किया होगा और बताया होगा कि कितनी मुश्किलें आई अपने लोगों से के साथ ना रहने पर, और कोई इमोशनल क्राइसिस हुआ हो या कोई ऐसी केसेस, अनफॉर्चुनेट केसेस हुई हो, कोविड हुआ हो किसी ट्रांसजेंडर पर्सन को, और किन किन लिमिटेशंस का सामना करना पड़ा। दीपिका जी। थैंक यू शालिनी जी। शालिनी जी, मुझे आप जब बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर आ रही थी, पूरा वो सीन चल रहा था कि I was in touch with a person and she used to call me Ma. तो one day I received a call कि माँ मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। मेरी जो मदर है उनको शायद कोविड है। तो मैंने यहाँ वहाँ अपने जान पहचान कॉन्टैक्ट्स निकाले और बात किया उसके साथ एंड उनको टेस्टिंग सेंटर भेजा एंड शी फाउंड कोविड पॉजिटिव। उनकी हालत बहुत ही खराब थी, जो सिम्टम्स दिख रहे थे, क्योंकि उनको ब्रीदिंग लेने में भी इश्यूज थे। तो मैंने उनको बोला एंड फाइनली, क्योंकि हम दिल्ली में कहीं और कर नहीं पा रहे थे ज़्यादा, तो
I have linked her to LNJP, Lok Nayak Jayaprakash Hospital, and she went there अपनी मम्मी के साथ. उसकी मम्मी जी को एडमिट किया गया, उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुए, एंड सडनली एक कॉल आता है कि आपकी मदर तो इस हॉस्पिटल में एडमिट, मतलब उन्होंने जब पता लगाया तो उन्होंने बोला, हॉस्पिटल वालों ने, कि आपकी मदर तो यहाँ नहीं है, शी इज नॉट एडमिटेड हियर. तो उसने मतलब इमोशनली, क्योंकि परेशान था वो बहुत, तो उसने मुझे बोलना शुरू किया, आपने कहाँ भेजा है, आपके वजह से ऐसा हुआ है, मेरी माँ गुम गई है, मैं बहुत परेशान हूँ, और आप आओ और आप आओ और आप आओ. एंड देन आई बुक्ड अ कैब एंड आई वेंट देयर. तो मैंने बोला, बात किया, एंड देन फाइनली आई गॉट, हमको ये बताया गया कि शी इज नॉट लॉस्ट, एक्चुअली उनकी हालत खराब है. तो हम उनसे मिलने के लिए इन लोगों को इग्नोर कर रहे थे. ये फैमिली वाले लोग बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें इनको मिलना है. तो हमने बोला कि कुछ तो कहें, तो हमने ये झूठ बोल दिया एक बार थोड़ी सी देर के लिए. तो देन मैंने हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बात करना शुरू किया. आपको पता है आप क्या बोल रहे हो, आप सेंस में हो अपने, आप किसी को बोल रहे हो कि आपके फैमिली मेंबर यहाँ है ही नहीं, तो उसको कुछ भी लग सकता है. ये कोविड का टाइम है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, शायद इंसान मर गया, शायद मेरा फैमिली मेंबर अब जिंदा नहीं है, शायद हम उसके साथ नहीं है. तो वो एक इंसिडेंट था. और उसी दौरान 4 दिन या 5 दिन के गैप के बाद हमको एक खबर आती है कि हर मॉम इज नॉट विद अस, वो नहीं. एंड जब ये बात पता चली तो उसने मुझे बोला कि आज के बाद मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में कभी नहीं आऊंगी, सिर्फ आपसे बात करूंगी, सिर्फ और सिर्फ आपसे फोन पे बात करूंगी. रीजन इज, जब मेरी माँ बीमार थी, जब वो परेशान थी, मुझे किसी ने हग नहीं किया, मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया. And she was like literally crying very very badly. मतलब सड़क पे चिल्ला के बोल रही थी वो कि मुझे किसी ने गले नहीं लगाया. एंड मैंने उसको समझाया कि शायद लोगों को डर था कि तुझे कोविड ना हो क्योंकि तेरी माँ को है, एंड इसीलिए वो तुझे गले लगाने से डर रहे थे या तेरे पास आने से डर रहे थे. मगर वो बोल रही थी कि मेरी जिंदगी से एक इंसान दूर जा रहा था और मेरे सपोर्ट में कोई नहीं था. एंड नाउ शी इज लिविंग वेरी alone and lonely. मतलब she is not in touch with community, वो किसी के पास नहीं जाती. So ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ लोगों का ट्रस्ट टूटा है, लोग दुखी हुए हैं, लोगों के फैमिली मेंबर्स की जान चली गई है और वो बहुत ही ज्यादा टूट गए हैं. एंड शायद उसको उस सब चीजों से कोप अप करने में टाइम लगेगा. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. मैंने उसको अभी भी बहुत बार समझाया है, बहुत अभी भी उसके साथ मेरी बात होती है तो वो वही बोलती है. एंड स्टिल शी हैव हर मॉम्स लास्ट पिक्चर एंड उसका डेड बॉडी का पिक्चर, और जो भी सब चीजें हैं एट लास्ट जो चीजें थी वो सब उसने रखा है कि देखो ऐसे रैप करके लेके गए थे. मैं अपनी माँ को देख नहीं पाया लास्ट में, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, उनको गंगा जल नहीं पिलाया. इंडियन कल्चर, गंगा जल नहीं पिलाया, मैंने उनके मुंह में तुलसी नहीं डाली, मैंने ये नहीं किया, उनको चुन्नी नहीं उड़ाई, रेड चुन्नी उड़ानी थी, वो मैरिड थी, मेरे पापा भी जिंदा हैं, एंड वगैरह वगैरह वगैरह. तो वो सब बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात रही. एंड एक छोटा सा है, एक छोटा इंसिडेंट है कि 2 ट्रांसजेंडर they were living together in one house. And suddenly one found COVID positive. जब एक कोविड पॉजिटिव है और दूसरी नहीं है तो क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से इतनी कनेक्टेड थी, एक साथ रहती थी एक ही कमरे में, तो वो बोलती है कि देख बहन, मैं तुझे मरते हुए तो नहीं देख सकती, तेरे साथ मर जाती हूँ मैं भी, क्योंकि मेरा तो कोई और है नहीं, मैं तेरे साथ ही मर जाती हूँ. चल तेरी केयर ही करूंगी, देखते हैं या तो दोनों जिंदा बच जाएंगे या तो दोनों ही मर जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई और आ नहीं रहा है सपोर्ट के लिए.
and she shared this to me on Facebook Messenger, text message. कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम चल रहे हैं दोनों लोग, आप बताइए हम क्या करें. तो इमीडिएटली मैंने उसको बोला था कि देखो, अगर तुमको उसको केयर भी करना है तो आई कैन डू वन थिंग. तुम, क्योंकि वो दिल्ली से ही था ये केस, तो मैंने उसको बोला था कि आप एक जगह आ जाइए, हम वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं राशन का भी, एंड साथ में ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर. तो आप यहाँ आइए, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर ये सब लेके जाइए. आप उसके पास जब भी जाइए ग्लव्स यूज कीजिए, ग्लव्स फेंक दीजिए, उसको खाना दीजिए तो आप चीज़ों को सैनिटाइज करके उठाइए. सब कुछ उसको बहुत समझाया. एंड देन फाइनली they both are well now, and they are happy. Wow. And they are saying कि कोई नहीं था समझाने वाला, और हम किसी डॉक्टर को जानते नहीं थे, आप ही हमारे लिए डॉक्टर हो, क्योंकि आप लोग एनजीओ में काम करते हो और आप लोग हमें समझाते हो. तो आज हम दोनों जिंदा हैं और दोनों खुश हैं, और ये हो पाया तो सिर्फ इस वजह से हुआ. एंड नॉट ओनली दिस, जब वो ठीक हो गए, एंड देन हम लोगों ने जब अपना कोविड वैक्सीन का कैंप लगाया, they both came for vaccination also, and I was so happy at that time. It's very touching, and thanks to people, young ambassadors like you, जो अपना कीमती वक्त ऐसे कार्य में लगाते हैं. Thank you so much for sharing. And now मेरा अगला क्वेश्चन अगेन डॉक्टर तमन्ना के लिए है कि जब इस तरह का इमोशनल क्राइसिस हो और सब कुछ हेल्पलेस लगे, किसी को हम रीच आउट नहीं कर सकते हैं, तो एक साइकोलॉजिस्ट या एक काउंसलर या किसी मददगार के पास पहुंचने से पहले क्या वो 2-4 छोटी छोटी चीजें हैं जो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को ध्यान में रखनी चाहिए और पैनिक ना हो इसकी कोशिश करनी चाहिए, especially in the context of the pandemic of COVID-19? Dr. Tamanna. Thank you, Shalini ji. और आपने बिल्कुल सही कहा. It was a very touching incident that have been mentioned by Deepika ji. Right. I would say that जब हम ये जैसे दीपिका जी ने 2 इंसिडेंट्स बताए, मैं दोनों इंसिडेंट्स के अंदर ये वाली बात कहूंगी that positive support plays a very very important role. First and the foremost, जैसा कि हमें जब पता चल रहा है, and I think I would really like to appreciate Deepika ji for that she could identify and see, because I would really like to put it across. And if I talk in terms of being a psychologist, first and the foremost is actually identifying the need, that yes, what is it required at that time frame, providing in that kind of an emotional support. And when I say an emotional support, it is in terms of understanding कि उस समय पे उनका इमोशन क्या है. जिस तरीके का उन्होंने पहला इंसिडेंट बताया कि जब वह अपनी माँ के लिए परेशान है, आइडेंटिफाइंग कि उस समय पे उनकी नीड क्या थी. वह उस समय पे गुस्से में इसलिए है क्योंकि अपनी माँ के लिए परेशान है, एंड हर तरफ देख रहे हैं. उस समय पे एक पॉजिटिव सपोर्ट लेंड करना और बता पाना कि नहीं, दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन गो. एंड फर्दर ऑल्सो बीइंग ओवर देयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम एंड वर्किंग ऑन इट. उसके आगे मैं ये कहूंगी कि जब हमें ये एक ग्रीविंग प्रोसेस होता है, बिकॉज द पर्सन हैज लॉस्ट अ लव्ड वन, एंड फॉर ग्रीफ दे अंडरगो अ स्पेसिफिक प्रोसेस. एंड उस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले द फर्स्ट, मोर ओवर ट्राइंग एंड एक्सेप्टिंग, बिकॉज यूजुअली एट फर्स्ट तो इस बात को मानने से इनकार करते हैं वो कि ऐसा हुआ, बट एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है. तो उसके बाद में दे नीड एन इमोशनल प्रोसेसिंग of all of this experience, and then it can entirely be helped through a psychologist, because a psychologist is somebody who's a trained individual. And यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी, even in our professional domain also, always it should be ensured that the individual, the professional that you are visiting is somebody who is specifically trained for working with the specific group, because we follow specific guidelines
we are specifically trained to deal in with every individual. The needs are always very different, and the counselor needs to be a sensitive one, an individual who understands that along with this being a human need of grief, understanding and emotional processing of this, along with that, they are also dealing with some other aspects which have been out and over there for them from being someone who is different. And then they can identify the supportive resources. And in those supportive resources, मैं ये बात कहूंगी कि दीपिका जी came across as a very, very important resource. साथ ही साथ, psychologist can help the individual to identify their supportive resources in terms of their own self also. And then they can chart on a possible course of action. कि आगे क्या करा जा सकता है, किस तरह से. कुछ केसेस हैं, कुछ इंसिडेंट्स हैं, कुछ हम लोगों के फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं who do not require a proper therapeutic support. They can be dealt in if we are able to provide them with a kind of peer support or a kind of an emotional positive support. While there would be some people who would definitely require a professional therapeutic support. So if we are the individuals, like I can see a very empathetic person out and over there, and in any case who is out and over there helping everybody. So we need to make that distinction and then be prepared to take on that very person to the professional, sort in that kind of an appointment and work with them accordingly. And be very, very thorough with this thing, that the person or the counselor or the psychologist chosen is somebody who is well equipped, well trained for these aspects. Because I believe that it has to be in that manner. Yeah, rightly said, Dr. Tamanna. Thank you for your valuable inputs. With this, now we move on to the next question, which is again for Deepika ji. COVID-19 के दौरान मेडिकल ट्रांजिशनिंग में जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स रहे, उनका भी एक चैलेंज रहा होगा. किसी ने हार्मोन थेरेपी शुरू की होगी, कोई मिडवे रहा होगा, किसी का कंप्लीशन की तरफ कोई बढ़ रहा होगा, किसी का सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरी जो है वो बीच में रुक गया होगा या पोस्टपोन करना पड़ा होगा. तो ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में सुनने को और देखने को जरूर मिले होंगे. तो मेरा सवाल आपसे दीपिका जी ये है कि उस टाइम पे, क्योंकि सब कुछ ठप पड़ा था और बहुत ही प्रॉब्लम हुई होगी, तो मेडिकल फ्रेटर्निटी और हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट क्लिनिक में, हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज के साथ कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया था, या और ये भी शेयर कीजिए कि जो थेरेपीज बीच में थी उसके चलते क्या कॉन्सिक्वेंसेस ट्रांसजेंडर पर्सन्स को के सामने प्रस्तुत हुआ, और जो कंप्लीट होनी थी वो बाद में फिर कितने टाइम बाद हुई या ना हो पाई. दीपिका जी. So, आपने जो लास्ट में बोला है वहां से स्टार्ट करते हैं. मैंने क्योंकि मैंने ये केस बहुत क्लोजली हैंडल किया था. एक ट्रांसजेंडर पर्सन जो कि सर्जरी के प्रोसेस पे थी, मतलब डॉक्टर्स ने उसको बोल दिया था कि अब मेरा सर्जरी होने ही वाला है, ऐसा उसने मुझे बोल दिया था कि मेरा सर्जरी होने ही वाला है. तो डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया है 2 महीने में मेरा सर्जरी हो जाएगी. तो मैंने बोला ठीक है, वेरी गुड. एंड सडनली पता चलता है कि कोविड आ गया. अब डॉक्टर्स ने उसको मना किया कि अभी तो आपकी सर्जरी नहीं हो सकती, एंड शी वाज कनेक्टेड विद गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा दिन वेट करते हैं, देखते हैं कब तक क्या चीजें नॉर्मल होती है. सो हुआ क्या कि पूरा जो प्रोसेस था वो रुका. 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कोविड का रहा. उसके बाद चीजें धीरे धीरे थोड़ा नॉर्मल भी होना शुरू हुई. जब चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं उस वक्त भी डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी तो क्योंकि हम कोविड की वजह से हम सर्जरीज अभी रोकी हुई हैं काफी लोगों की, काफी चीजों की, बिकॉज इसके लिए ये तो इतनी बड़ी डिमांड नहीं है और इमरजेंसी नहीं है जिसको इमीडिएटली करना बहुत जरूरी है. देयर आर अदर
इमरजेंसीज जिनको फोकस करना है लाइक कैंसर वगैरह वगैरह करके वो लोग थोड़ा बोलने लगे कि हम इन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सीडेंटल इंजरीज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और क्योंकि इट जस्ट अ प्लास्टिक सर्जरी तो हम बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा करके उन्होंने उसको होल्ड कर दिया। सो ऑलमोस्ट 1 year 3 to 4 months उसको होल्ड पे रहना पड़ा, उसके बाद उसकी सर्जरी हुई। सो उसको थोड़ा वो बुरा ही लगा ऑफ कोर्स, क्योंकि 2 महीने में जो चीजें होने वाली थी वो 1 साल से भी ज्यादा टाइम लग गया। फिर अगर आप हॉर्मोन्स की बात करते हैं तो कुछ बड़े सिटीज की अगर हम बात करें तो वहाँ चीजें थोड़ा मैनेज हो पाई, बिकॉज डॉक्टर्स के ऑनलाइन प्रेस्क्रिप्शंस हम ऑनलाइन फोरम पे, ऑनलाइन एप्स पे डालते थे और अपनी मेडिसिन घर डिलीवर करा लेते थे। जैसे फॉर एग्जांपल 1mg की बात करें, 1mg इज अ ऐप, उस पे मेड लाइफ एक है। तो ये एक दो चीजें हैं जहां पर हम अपना ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन देते थे और बदले में हमको वो मेडिसिन घर डिलीवर हो जाती थी, तो वो मेडिसिन खा लेते थे। बट पीपल दोज आर लिविंग इन स्मॉलर सिटीज और कस्बा और डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर चीजें थोड़ा टफ थी, वहां पे चीजें नहीं हो पाती। जैसे पीपल दोज आर लिविंग इन फॉर एग्जांपल ललितपुर, which is border of UP, on the outskirts, yes, on the outskirts of ये थोड़ा सा मतलब वो मध्य प्रदेश के हिस्से में ऐसे लटका हुआ दिखाई देता है अगर आप मैप में देखेंगे तो वैसे छोटी सी सिटी, या फॉर एग्जांपल पंजाब में कोई गांव है ना, राजस्थान में बूंदी करके एक है छोटा सा जगह बूंदी, तो ये 2-3 जगह इसलिए याद है क्योंकि यहाँ से मेरी बात हुई। तो वहां से लोगों ने बोला कि हम तो मेडिसिन नहीं खा पाएंगे, हम तो दिल्ली नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यूजुअली दे यूज्ड टू कम दिल्ली फॉर फेशियल हेयर रिमूवल सर्जरी, जिसको हम लेजर थेरेपीज बोलते हैं। लेजर थेरेपीज के लिए वो यहाँ आते थे। कुछ लोग हार्मोन के इंजेक्शंस लगवाने के लिए दिल्ली आते थे, तो वो लोग नहीं आ पाए, उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा काफी लेवल पे, तो वहाँ पे एक इशू था। एंड बट कुछ जगह पर प्रॉब्लम्स भी हुए, जैसे फॉर एग्जांपल इफ समबडी हु इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट देयर मेडिसिन ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, तो सो क्या हुआ है, कुछ लोगों ने उसका, क्योंकि काउंसलिंग नहीं हो रही है, नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो फॉर एग्जांपल इफ शालिनी पांडे इज टेकिंग अ मेडिसिन जिससे वो खूबसूरत दिखाई दे रही है, so Deepika will also start the same medicine, and Deepika बोल देती है कि बहन 1 महीने की जगह 2 महीने की मंगा लेना, और 1 महीने की मुझे दे देना, 1 महीने का तुम रख लेना। तो वो सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट हो गया, जिसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं बहुत, और हम सभी को पता है कि हर एक मेडिसिन हर इंसान को शूट नहीं करती है, तो है ना। जैसे हो सकता है आप के लिए मुझे क्रोसिन अच्छी लगे, आपको कॉम्बिफ्लेम अच्छी लगे, किसी और को कुछ और अच्छा लगे या शूट करे, तो ऐसे ही ये हॉर्मोन्स का भी होता है। तो वो भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी देखने को बहुत मिले, और ऑल्दो हम लोगों ने हमारे जितने भी एनजीओस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स थे जिन्होंने हेल्पलाइन बनाई हुई थी जिसपे बोला गया था कि आप लोग हमसे बात करो, बट क्या सभी लोग उन हेल्पलाइंस को एक्सेस कर पाते हैं? दिस इज अनदर क्वेश्चन, क्योंकि सब लोग तो उसको एक्सेस नहीं कर पाते, सब लोग तो वहां तक नहीं पहुंच पाते, सब लोगों तक वो इंफॉर्मेशन भी नहीं पहुंच पाती है कि देयर इज एन हेल्पलाइन। आप इतना बात कर रहे हैं हम लोग आरोग्य सेतु ऐप वगैरह वगैरह, इस इंडिया की बात करते हैं, नॉट टॉकिंग पॉलिटिकली, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इतना सब बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप वगैरह वगैरह, इतने सारे स्मार्टफोन हैं, लेकिन कितने लोगों ने आरोग्य सेतु को ऐप डाउनलोड किया, कितने लोगों ने आरोग्य सेतु को फॉलो किया? नहीं, बहुत कम लोग, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है ना आरोग्य सेतु कुछ करके है क्या है। कोई एडवर्टाइजमेंट तो नहीं हुआ कि मान लो कोविड आया और टीवी पे रोज दिखाई दे रहा है कि आरोग्य सेतु डाउनलोड करो, ऑल्दो आता था बट आरोग्य सेतु आता था। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, जैसे आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आप ट्रीटमेंट पे हो तो आपको क्या करना चाहिए, है ना, तो आप पढ़ते हो तो आपको क्या करना चाहिए, है ना, तो वो चीजें बताई नहीं जा रही थी।
तो आई थिंक दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग. वो अगर चीजें आती न्यूज के थ्रू या किसी भी तरह से आती तो लोगों को पता चलता, वो अवेयर होते और चीजों के साथ कनेक्टेड रहते. बट ऐसा हाँ, अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया. हुआ नहीं। तो इसलिए लोगों को मालूम नहीं था कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता था. जैसे मैंने बोला कि 1mg है, ये है, वो है, मेडलाइफ है, बट बहुत लोगों को नहीं पता. बहुत लोगों नहीं को वो मालूम। है, जो लोगों को ये नहीं पता तो उन लोगों को हेल्पलाइन भी नहीं पता, तो वो किसी से फोन करके पूछ भी नहीं पा रहे कि मुझे ये चीज की जरूरत है. तो ये सब भी बिल्कुल सही आपने कहा दीपिका जी। एंड सुन के लग रहा है कि अभी भी बहुत गैप है और बहुत काम बाकी है। इसी तर्ज पे अगला सवाल मैं डॉक्टर तमन्ना से करूंगी, जो कि काउंसलिंग सर्विसेज से रिलेटेड है दोबारा। और उनसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो ट्रांजिशन कर रहे हैं और जिनको इस तरह की रुकावटें आती हैं कि बीच में किसी न किसी वजह से थेरेपीज रुक जाते हैं, हार्मोन थेरेपी हो या लेजर थेरेपी हो या SRS का पोस्टपोनमेंट हो जाता है, तो ऐसे समय में एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ काउंसलर हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं ताकि वो एंशियस ना हो, स्ट्रेस में ना आए? डॉक्टर तमन्ना. डॉक्टर तमन्ना. थैंक यू शालिनी जी. सबसे पहली बात, जैसे कि दीपिका जी ने कहा कि जब हम बात करते हैं ट्रांजिशनिंग की एंड अलग अलग प्रोसेस, अक्सर जब वह बीच में रुक जाए या किसी भी वजह से रुकावट आ जाए, in any case that is something that leads on to anxiety. And उस एंजाइटी को पैनिक बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है. नहीं लगता. So what is more important is at the first place, पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम अगर तो वह स्टार्ट हो चुका था एंड इफ इट इज इन बिटवीन, तो मेडिकली what all precautions, what all aspects are to be taken care of. क्योंकि जैसे हम अगर हार्मोन्स की बात करते हैं या किसी की बात करते हैं, they all have their impact and it has to be dealt accordingly. तो सबसे पहले तो मेडिकली हमें मालूम होना चाहिए. इसके लिए हमें मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की हेल्प सॉर्ट आउट करनी चाहिए. जहां तक दूसरा और ज्यादा दर्द जो मुझे भी मालूम पड़ा, ज्यादातर यही हुआ कि डिले हुआ कि इवन इन ऑर्डर टू स्टार्ट. क्योंकि वही वाली बात, क्योंकि जब कोविड की बात करी गई तो सारी प्रायोरिटी एक तरीके से सिर्फ कोविड के ऊपर थी. And it was not just about this. There were instances, and even research has pointed on to, not just in our country, all across the world, there has been a lot of research evidence even to quote that it was being said that this is something which can wait, and all other things are priority. But for the very individual, this is something which is extremely important. So again, the pointer comes in that what entirely we can do. And one is definitely providing support in terms of and level of awareness that yes, this has just been delayed. It is not something which is not going to be available for you at all. That's one thing. The other thing being trying and focusing onto this aspect that this should not lead on to a scenario in which they get onto a domain in which is more self-threatening at times also. So for that, it is very, very important that they are in control of their own self in order for them to be a relaxed individual. I know at times this may sound very cliched that how entirely the same can be done in, but it's when we try and we working onto it, somebody trying and asking them to utilize and take deep breaths, focusing onto the positive aspects, trying and seeing some good things into it, because eventually एक थोड़ी सी क्रूड सी बात है, मगर एक बात और भी है, हर कोई कोशिश कर रहा था कि वो हॉस्पिटल से दूर रह पाए किसी ना किसी तरह से. So trying and seeing it from that, trying and speaking to people who are friends, trying and connecting to them, and trying and doing some other kinds of activities which can be more enjoyable. Getting into, we usually talk a lot about our concepts of flows, so trying and doing something which they enjoy doing and looking forward to a positive
and then a positive future per se. And that is something which is essentially important and which could entirely help specifically at this time period during the process of transition. Otherwise, when we are into the process, there are different ways through which psychologists do try and help them go through the process in order to deal in with all kinds of some kind of medical aspects also, which are being seen, which are psychological in nature, because a lot of hormones are involved into it. So that is rightly said, Dr. Tamanna, and it seems that this platform and our audience will be benefited by all the inputs that you have been giving so far. It's immensely helpful to the people who are listening and to all of us who are right now participating in the discussion as well. तो अब हम अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ेंगे, जो मेरा दीपिका जी से है। कोविड-19 अभी भी पूरी तरीके से हमारा पीछा से छूटा नहीं है, and somewhere we'll take some more time, a lot of time in fact, to get back into our old shoes and lead a normal life. But मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो आके हमारा एज इन ट्रांसजेंडर पर्सन्स और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की हैंड होल्डिंग करें, तो विद द सपोर्ट ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी रिस्पॉन्स या फिर स्टेट और गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, तो हम शायद धीरे धीरे करके अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट जाएंगे। अगर फर्दर कोई वेव नहीं आता है तो मेरा अगला सवाल दीपिका जी, आप इस पे रोशनी डालें। ओके, सो आपने जिस तरह से बोला है कि ऑब्वियसली ये सिर्फ, मुझे लगता है ये सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम तो पूरे समाज के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है कि सब लोग अपनी लाइफ को वापस उस जगह लाना चाहते हैं जहाँ थे हम, है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट चला गया है, जॉब्स चले गए हैं, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं, है ना। वन ऑफ माय फ्रेंड, शी वाज ट्रांसजेंडर एंड उसका कुछ छोटा सा रेस्टोरेंट था और कोई खाने नहीं आता था तो उसका रेस्टोरेंट बंद हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट येस यू आर राइट, स्टेक होल्डर्स ऐसे हो सकते हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं, सो हमारे पास अभी आज की डेट में हमारे एक गवर्नमेंट स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट बॉडी का एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं NBC FTC, जिसको हम बोलते हैं नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो इन लोगों ने अपने हेल्पलाइन चलाए हैं, यूजुअली उन लोगों ने हेल्पलाइन चलाए हैं जिसमें आप मेंटल हेल्थ या किसी भी हेल्प के बारे में अगर बात करना चाहते हैं ट्रांसजेंडर इश्यूज के ऊपर, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। सो मेरा मानना है कि इसी तरीके के बाकी अदर सपोर्ट्स भी हमको मिलने चाहिए, मतलब हमको इन द सेंस समाज को मिलने चाहिए, और स्पेसिफिकली आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी, जहाँ पर जैसे मतलब शायद बहुत लोग हैं जिनका बिजनेस, काम धंधा सब बंद हो गया है, तो अभी उनको थोड़ा सा अपनी लाइफ को जैसे होता है ना ड्रैग करके ले जाना पड़ रहा है, खींच के आगे ले जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा टफ हो रहा है। तो अगर गवर्नमेंट उनको अगर कहीं थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, थोड़ा सप्लीमेंट दे, किसी भी तरह से हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, शायद उनको जॉब्स में सपोर्ट देने की बात हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब्स में ले सकते हैं, या शायद कोविड को मद्देनजर रखते हुए ही अगर गवर्नमेंट ध्यान दे तो शायद छोटा सा इनिशिएटिव जो कि कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि अगर if you have this much of turnover or this much of staff strength in your particular organization and your workplace, so आप उसमें से 2% या 5% ट्रांसजेंडर्स के लिए रिजर्व कर दीजिए, can be, है ना, so that community will get benefit out of it. देखो 100 हेटेरोसेक्सुअल कम्युनिटी मेल फीमेल काम कर रहे हैं, बट अगर उसमें से 100 में से 2 ही ट्रांसजेंडर, आई एम नॉट सेइंग कि 10% दे दो, बट 2 ही ट्रांसजेंडर्स अगर आप रखते हैं
So many transgender will get job opportunities in their in their cities. And वहाँ जब उनको जॉब मिलेगी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो अपने इश्यूज को वो ओवरकम कर पाएंगे, चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, तो टाइम उनको लगेगा कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं उनकी लाइफ में ना। तो शायद थोड़ा सा गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट, जैसे आपने मुझे सवाल पूछा है तो मेरे दिमाग में है, शायद गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि 1 से 1.5 साल या 2 साल में कितने सारे ऐसे ट्रांसजेंडर्स थे जिनकी सर्जरीज रुक गई। इवन शायद सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के ट्रांजिशन के बारे में ना सोच के और भी चीजें हैं जिनको इम्पोर्टेंट नजरिए से देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई नो वन लेडी, not trans lady, one lady, she was my friend's mother, so she died just because of उनका कैंसर का प्रॉब्लम था और वो सर्जरी हो नहीं रही थी कोविड की वजह से। आज होगी, कल होगी, 2 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद होगी करके चल रहा था, and she lost her life, and my friend feels so sad about it कि ये तो हो नहीं पाया टाइम से, एंड उसको बहुत रिग्रेट होता है इस बात का। हर बार जब भी कॉल पे बात होती है वो यही बोलता है मुझे। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें मतलब गवर्नमेंट को ये आइडेंटिफाई करना होगा कि विच थिंग्स आर इम्पोर्टेंट नाउ, किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, कहाँ कौन सी ऐसी चीजें जिससे लोगों की लाइफ पे असर पड़ रहा है ना। सो ट्रांसजेंडर्स के ट्रांजिशन की तरफ जहाँ फोकस होना चाहिए वहाँ थोड़ा सा फोकस इनके ऊपर भी होना चाहिए कि लगता है यार ये कैंसर पेशेंट है, अगर टाइम से अभी सर्जरी नहीं हुई शायद वो मर जाए या उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाए, उससे बेटर है उसका पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। तो आई थिंक ये सब थोड़ा हमको, जैसे होता है ना पुराने राजा होते थे तो वो पूरी रणनीति बनाते थे, है ना, कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाते थे कि उनको अब करना क्या है। उनके मंत्री और बाकी सब बैठ के पूरा डिस्कस करते थे। नाउ द राइट टाइम व्हेन गवर्नमेंट हैव टू थिंक अबाउट इट, एंड उनको पूरा एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि अब देखो वो वक्त तो था कोविड का, लेकिन उसकी वजह से लोगों की जिंदगी में क्या क्या असर हुए हैं और उनको आज की डेट में किस तरह से ठीक किया जा सकता है या ट्रैक पे लाया जा सकता है, वो सोचना आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। और जब वो सोचेंगे तो चीजें बहुत टाइम से ठीक हो सकेंगी, एंड पीपल विल फील connected towards the government also, मतलब politically भी अगर देखेंगे तो and they will get more votings next time. Rightly said. So we have to pull up our socks and we have to pull up together and कोशिश ये करना है कि हम यहाँ से आगे मूव कर सके, हम यानी सभी ग्लोबली। Now the last question comes to you, Dr. Tamanna. और मेरा सवाल आपसे ये है कि it has been 1.5 years since COVID struck us so badly, and we were all shocked, and we did not know how to do things and what life is going to be during and post COVID for each one of us. So now that we are focusing on the transgender community, I would like to know कि आप कुछ suggestions ऐसे बताएं जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स को हेल्प करें कि वो यहाँ से पॉजिटिव नोट पे अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी, अपना काम, अपने सहकर्मी के साथ आगे कैसे बढ़े। डॉक्टर तमन्ना। थैंक यू शालिनी जी, एंड I think you have put it across in a very right manner that it has been a difficult time frame, but we are the people who really would like to look in for that ray of hope and that light out and over there. So some very small kind of aspects or tips that I would like to put across specifically for all of our transgender friends, putting it across into a manner that I would definitely say the ones who would require the therapeutic help should reach on to the mental health professional, to the psychologist. Along with that, some very major aspects that can be worked upon is, first and the foremost,
trying and having a non-judgmental stance for yourself. That's the most important. Please do not judge yourself or even your reactions. It's absolutely fine. You are allowed to feel the way you are feeling. So don't feel that it is just you. So have a non-judgmental stance for you. That is very, very important. The next point, what I would like to say is essentially connect yourself. Connect yourself to people whom you find that would be able to give you healthy pointers, positive stance, जिनसे बात करके अच्छा लगे. Even 10 मिनट की conversation भी बहुत अच्छी लगती है. 10 मिनट, 5 मिनट, and it is important to have those people with whom, and these are the people they should entirely connect to. इसी connection के साथ साथ मैं कहूंगी, it is also important to disconnect also. Connect to the right people for the healthy connections. A bit of disconnection also, क्योंकि स्पेशली कोविड टाइम में क्या हुआ, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है हमारे पास हर तरफ से, हम सिर्फ खराब खबरें ही सुन रहे हैं, सबसे वो जान रहे हैं, तो कुछ डिस्कनेक्ट भी जरूरी. So trying and disconnecting from that also. Further, trying and knowing more, educating your own self. And when I say educating your own self, I mean by knowing about even जैसे हमने transitioning की बात करी, या इवन रहने की, क्योंकि ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी जो फेस करी गई है. सो ट्राइंग एंड एजुकेटिंग, ट्राइंग एंड लुकिंग फॉर द वेरी रिसोर्सेज कि अब क्या हो सकता है, कि किस तरीके से हम आगे चल सकते हैं, एंड गेटिंग एक्चुअल इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत जगहों से आती है. ट्राइंग एंड हैविंग दैट इंफॉर्मेशन व्हिच कैन एक्चुअली डिक्रीज द एंजाइटी and work on to that. Being calm, finding that calmness, that kind of a thing, that as I mentioned, it could be dance, it could be music, it could be even drawing something, like creating something with clay, even with mud, doing anything, जो भी ऐसा जिससे यह लगे कि हाँ पूरा सारा बोझ हमारे पर नहीं है. We are relaxed, and it is important. And I always say, love yourself. Definitely love yourself. You are to be loved. And then along with that, setting a schedule for ourselves. सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो इस कोविड टाइम पीरियड में हुई है, our schedule went haywire, because पूरा structure एक तरीके से it went haywire there, and there is that degree of uncertainty also. So try and have a set of and have a schedule for yourself, because already there is a lot of uncertainty. So when we have a schedule, at least there is some certainty for ourselves. So that way our mind starts working. The cognition is similar for everybody. It works in the same manner. So that schedule is definitely going to help. Try and move outside. Find small things. Take a moment to even look at the birds, even look outside, and trying and even meeting, interacting with friends, and finally looking in for help. Wherever required, looking for help, looking for the people. That we are all out and over there, and I think we are all people who are like there to help each other. And finally, don't give up. Please don't give up. This is something which is definitely going to pass, and all of us are together. I think COVID has also brought a lot of people together. We know that there have been pointers which have been difficult, there have been uncertainties, there have been qualities, but I would say that this is one thing which has brought about all of us together also. So try and see it, just like any emotion, we go at peak and then we come down. So engage yourself, go on, take a walk, and get into wellness things. And in any case, our bodies are not very attuned to taking on all kinds of heavy things or negative emotions, but they very readily take on the positive ones. So I think that is something which can definitely help in. And I would really like to, put across and conclude on a very, very positive note that yes, definitely we are all there together into this. There may be some pointers here and there, but eventually, as human beings, we are all one, and that is what matters at the end of the day. And I'm sure that if there are pointers which have not been that conducive that well, there are some very, very good stories also. And I'm glad that I was a part of this conversation in which Deepika ji shared such good pointers, such
incidents which have touched us greatly, and it has even prompted me to work on more onto in this area, that in order to contribute, work onto it, so that we can bring about a positive change out there in the society. And I'm sure that when all of us who are like feeling about each and everyone, and feeling so positively about it, there would definitely be a positive change. And if we can bring about this kind of a change even in one or two individuals, I think it does play a very, very essential. Exactly. So that is Thank you so much, Dr. Tamanna. It was lovely listening to you. And with this, I would like to conclude with my remarks. I firmly believe that all of us here on this platform today have infinite thoughts evoking within ourselves as we got an opportunity to listen to this August panel of Dr. Tamanna with Deepika ji. And I must thank Dr. Meena, the chairperson of BBRFI, for organizing such a beautiful discussion on the platform. I have known Deepika ji since 2017, and we still try to get in touch off and on. And it's lovely interacting with Deepika ji whenever I get an opportunity with such a positive attitude towards life. I learned from you a lot, Deepika ji. Thank you so much. I express my gratitude to her for taking her valuable time from her busy schedule to be with us today and share her experience with our audience. Wish you all the best for your future endeavors, Deepika ji. Now I would like to hand over the session to Dr. Meena for her concluding remarks. Namaskar. Thank you, Shalini ji. Well, it was really wonderful. और जो एक इस पूरे डिस्कशन में से जो एक बात बहुत उजागर हुई है पूरी तरीके से, वो ये है कि दीपिका जी ने जितनी भी बातें कही उसमें समाज को एक समावेशिता की झलक दिखती है। कहीं किसी भी तरीके से उन्होंने किसी भी बात का कंप्लेन नहीं किया कि हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अलग है तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच इनका दिखाता है। तो जब दीपिका जी किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं कर रही हैं, तो हम जिसे सो कॉल्ड नॉर्मल कहते हैं, तो हम ऐसा क्यों कंप्लेन करते हैं? इस बात पे हमें ज़रूर सोचना चाहिए। हमारी सामाजिक सुरक्षा की सुदृढ़ता तभी पता चलती है जब कोई आपदा आती है, और इस आपदा ने, जो कि कोविड थी, इसने बहुत सारी जहाँ पे विसंगतियाँ जाहिर की हैं, उजागर की हैं, उसी तरीके से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी सामने आई हैं। और मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी। वी ऑल आर इक्वल and we all have the right to have equal access to healthcare, be it physical healthcare or mental healthcare. मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि हम आदर्श समाज की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुनिया की कोई भी सरकार हो। और आदर्श समाज वह देश तभी हो सकता है जब वहाँ समावेशिता होगी, सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको स्वस्थ रहने का समान अधिकार मिलेगा, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। So mental health is the fundamental right of all human beings, and we as responsible citizens should ensure we are promoting the same. तो आज के इस सेशन को मैं एक कोट से एंड करना चाहूँगी। We should indeed keep calm in the face of difference and live our lives in a state of inclusion and wonder at the diversity of humanity. This is from The Lions and Tigers and Bears, The Internet Strikes Back 2013. It's a wonderful quote जिसको भी हमको सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और आप सभी को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की ढेरों बधाइयाँ। और ये दिवस हमें ये भी बताता है कि कितना एक ज़रूरी अहम हिस्सा है मानसिक स्वास्थ्य। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए सबको इस बात पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आप सभी को मेरा हार्दिक आभार कि आपने अपना कीमती समय निकाला। दीपिका जी, आपको विशेष रूप से मेरी बधाइयाँ। और
मैं तो आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी आज इस माध्यम से कि आप हमें भी कुछ करने का मौका दें आपकी कम्युनिटी के लिए। हमें इसमें बहुत खुशी होगी। हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए जरूर हम मिलकर बात करेंगे, और कैसे आप मदद कर सकते हैं हम जरूर बात करेंगे इस पे। तमन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत जल्दीबाजी में आकर ये समय निकाला है हमसे ये दीपिका जी से बात करने के लिए, और ये अपनी जो आपकी साइकोलॉजिकल इनपुट्स हैं वो देने के लिए। एंड एट द एंड शालिनी जी, थैंक यू फॉर मेकिंग इट ऑल पॉसिबल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड ब्लेस इंडिया। नमस्कार। Thank you. नमस्कार, थैंक यू।